If you have any doubt, anyone, you can just ask me by unmuting yourself. So just let me present the screen. I think Salil, Ayush ये Salil की drive में जाएगी and he can share the recording with all of you. Okay, so if anyone can confirm if the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I'm just trying it. So if कोई doubt आए screen नहीं visible हो, audio नहीं हो, so just unmute yourself and let me know. And I hope Salil recording कर रहा है and hopefully you will be able to get it. Okay. So in the last lecture we talked about page table and in detail we talked about paging. Paging is one of the most important non-contiguous memory allocation scheme, and in modern operating system we use paging, and we know that in the case of paging we divide our RAM into fixed size blocks known as frames, and similarly we divide our logical memory, or better to say our process, into fixed size pages. And we learned that page table is the memory management unit which plays the important role to convert the logical address generated by CPU into the physical address, which is the actual address through which the execution takes place. And in the last lecture, we talked about TLB, which is a kind of associative memory, which stands for translation look aside buffer. And TLB is a kind of cache memory, which is much faster than RAM. And we see how we first search our page into TLB. If it is found there, then it is a TLB hit. And in that case, our effective access time will be very less. We will be able to find our page in the main memory very fastly. And we learned how to calculate the effective access time. So this is what we have read till now. So today, the major focus will be on segmentation, which is another memory management scheme under non-contiguous memory allocation. But just before that, we have a little bit a small topic, that is structure of the page table. So in detail, I am not going to discuss it. You have to submit one assignment also for TA. So that would be your task. I will just submit the topics which you have to submit. So just I'm giving you a brief idea about these topics. So we have seen in paging that we used to have page table, and page table is a kind of memory management unit which used to convert the logical address into physical address. Now you can see in many cases the memory structure can be very huge. हो सकता है हमारी जो logical memory है, हमारी hard disk है, हमारी secondary memory है, वो बहुत बड़ी हो size में. So in that particular case, it is not feasible to have page table, general page table, normal page table, which we used to have. So because page table used to store all the पेजेस, तो पेजेस हमारे कहाँ से आएंगे? लॉजिकल मेमोरी से, और रैम का जो हमारा साइज होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है as compared to our hard disk, so it is not always feasible. So just before discussing what it is written here, so just let me discuss one thing with you. So if we are having only one bit, तो अगर मेरे पास एक ही bit है, suppose this bit, so I can use only 0 और 1. तो इस एक बिट पर मैं या तो 0 को प्लेस कर सकता हूँ या फिर 1 को प्लेस कर सकता हूँ. दैट मीन्स इफ आई हैव ओनली वन बिट, then there are two different binary numbers are possible. And similarly, if I am having 2 bits, so in these 2 bits I can have 4 different numbers. It can be 00, 01, 10 एंड 1 1. तो अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो मैं इन 2 बिट्स से 4 बाइनरी नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ, रेंजिंग फ्रॉम 00 to 11. सिमिलरली इफ आई हैव 3 different bits, then I can generate 8 different numbers 000 से 111 तक. So the major thing which you have to understand, basically ये आपका टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स का है जो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, how the addresses are generated. But for just
this example I am explaining you thing. If I am having only one bit, so I'm just explaining it once again for all of you. If I'm having only one bit, then it can be either 0 or 1. That means we can generate two different numbers. If I am having two bits, then we have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. We can generate four numbers. If we have three bits, then we can have from 0, 0, 0 to 1, 1, 1. That means for n bits, we can have 2 raised to power n different numbers, or better to say 2 raised to power n addresses. Now, जो भी यहाँ पे गिवन है पॉइंट नंबर 1, सो द मेमोरी स्ट्रक्चर्स फॉर पेजिंग कैन गेट ह्यूज यूजिंग द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. सो सिंपल क्या है, अगर मेरे पास लॉजिकल मेमोरी स्पेस बहुत बड़ा है, अगर मेरी हार्ड डिस्क का स्पेस बहुत ज्यादा है, देन डेफिनेटली पेजिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, पेज टेबल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो एक एग्जांपल इन्होंने गिवन है, कंसिडर अ 32-bit लॉजिकल एड्रेस स्पेस. तो भाई 32-bit लॉजिकल एड्रेस स्पेस का क्या मतलब है? दैट मींस वी हैव 2 raised to power 32. दिस इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस. एंड बेसिकली 2 raised to power 32 का मतलब क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू 4 GB. तो भाई ये 4 GB कैसे है? 2 raised to power 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power 2 into 2 raised to power 30. So 2 raised to power 32 can be 2 raised to power 2 into 2 raised to power 30. So 2 raised to power 2 is 4. And you know that 2 raised to power 30 किसके बराबर होता है? It is equivalent to gigabyte. So it is GB. So it will become 4 GB. So that means मेरे पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो 4 GB का है. एंड जस्ट रिमेंबर, मेमोरी हमेशा बाइट एड्रेसेबल होती है. हमेशा जब हम मेमोरी को की बात करते हैं तो वो बाइट्स में बात करते हैं. So 2 raised to power 32 here means 2 raised to power 2 into 2 raised to power 30 and it means 4 GB. तो मेरे पास 4 GB का एक प्रोसेस बोल सकते हो या लॉजिकल एड्रेस स्पेस है. एंड आफ्टर दैट हमें क्या गिवन है? देखो पेज साइज गिवन है. पेज साइज कितना है? पेज साइज इज 4 KB. सो अगर मैं बात करूं पेज साइज की तो 4 KB. तो मैं 4 KB को क्या लिख सकता हूं? 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2 एंड KB को अगर मैं किलोबाइट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करूं, सो इट विल बी 2 raised to power 10 बिकॉज 1 KB is equals to 2 raised to power 10 bytes. सिमिलरली अगर मैं मेगाबाइट्स की बात करूं, सो 1 MB is equals to 2 raised to power 20 and 1 GB is equals to 2 raised to power 30. सो बेसिकली यहाँ पे देखो हमें पेज साइज गिवन है 4 KB. तो भाई जो पेज साइज 4 KB गिवन है, 4 को मैंने 2 raised to power 2 लिखा और किलोबाइट्स को मैंने बाइट्स में कन्वर्ट किया. इट विल बी 2 raised to power 10. तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 2 raised to power 12. तो अब जरा ध्यान से देखो मुझे क्या गिवन है. एक मुझे लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है विच इज 2 raised to power 32 और मुझे एक क्या गिवन है? पेज साइज गिवन है. पेज साइज है 4 KB जो कि किसके इक्वल होता है? 2 raised to power 12 के. तो मुझे क्या बताना है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? तो हमें पता है कि सिंपली नंबर ऑफ पेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय पेज साइज. सो इट विल बी सिंपली 2 raised to power 32 divided by 2 raised to power 12 which will be equal to 2 raised to power 20. So अगर मेरे पास 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, यानी कि अगर मेरे पास 4 GB की का प्रोसेस है या 4 GB लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, तो वही उस केस में मेरे पेज टेबल के अंदर 2 raised to power 20 दैट इज 1 मिलियन एंट्रीज आ जाएंगी. तो आप सोच सकते हो कि इतनी एंट्रीज को स्टोर कराने के लिए हमारे पास रैम में उतनी स्पेस भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेज टेबल है वो भी कहाँ पे स्टोर होता है? रैम के अंदर ही स्टोर होता है. और बेसिकली यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो टोटल लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो 32 बिट का है. लॉजिकल एड्रेस है वो दो पार्ट्स में. साइज, पेज साइज मुझे यहाँ पर गिवन है वो कितना है? 4 KB. 4 KB किसके इक्वल है? 2 raised to power 12. तो इसका क्या मीनिंग है भाई? जो 12 बिट्स हैं वो मेरे यूज होंगे ऑफसेट के लिए और 32 में से जो बाकी बच गए 12 माइनस करके, यानी कि जो 20 बिट्स हैं वो मेरे क्या होंगे? पेज नंबर होंगे. तो हमने यही कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ पेजेस कितने आएंगे? 2 raised to power 32 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 12 that will be 2 raised to power 20. That means टोटल 32 बिट लॉजिकल एड्रेस में से जो 20 बिट्स हैं वो मेरे
पेज साइज पेज नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और जो बाकी 12 बिट्स हैं वो पेज साइज को रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरी लॉजिकल मेमोरी बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में पेज टेबल का साइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. और पेज टेबल हमारा कहाँ स्टोर होता है? रैम के अंदर. तो मेरे पास रैम बहुत लिमिटेड होती है. सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मैं सारे के सारे पेज टेबल को मेमोरी में स्पेस दे पाऊं. सो फॉर दैट problem we have different types of structure of page table. So you can see there are 3 different ways by which we can just try to solve this problem. So this is very first is known as hierarchical paging, second is known as hashed page tables, and last is known as inverted page table. So मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा because you just have to submit these topics as your assignment topic, but just I'm giving you a brief overview so that आपको पता हो कि exactly इनमें क्या होता है. So this is the overall story कि अगर मेरे पास 2 raised to power 32 यानी कि 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है तो मेरे पेज टेबल के अंदर 1 मिलियन 2 raised to power 20 एंट्रीज हो जाएंगी जिसे मुझे रैम में स्टोर कराना डिफिकल्ट है. सो द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन इज हायरार्किकल पेजिंग. नाउ लेट्स डिस्कस हायरार्किकल पेज टेबल. तो भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं? वी यूज टू ब्रेक अप द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू मल्टीपल पेज टेबल्स. तो यहाँ पर हम अपने लॉजिकल एड्रेस स्पेस को एक पेज टेबल में नहीं डिवाइड करते, हम बहुत सारे अलग अलग पेज टेबल्स बनाएंगे. And simplest technique to implement this hierarchical page table is using 2 level page table. यानी कि 2 अलग अलग levels के page table होंगे. And last line is equally important. We then page the page table. तो भाई हम page table के भी pages बनाएंगे. So this is the diagram to understand the concept. तो सबसे पहले अगर हम इस middle वाले diagram को देखें तो यहाँ पर हमने क्या करा है? ये हमारे अलग अलग page table हैं जो इसके अंदर कंटेन्ड है और इन पेज टेबल के भी हमने पेजेस बना दिए. और एक फिर हमने आउटर पेज टेबल रखा जो क्या काम करेगा? एज एन इंडेक्स काम करेगा, जो हमारे मिडल वाले डायग्राम के अंदर जितने भी पेज टेबल्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको इंडेक्स करने के लिए. एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव सेम द कंसेप्ट ऑफ आवर मेन मेमोरी. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 2 लेवल पेज टेबल स्कीम. तो अभी तक जब भी हम पेजिंग कर रहे थे तो हम सिर्फ एक ही पेज टेबल बना रहे थे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कम थे तो हम इजिली पेज टेबल में स्टोर करा पा रहे थे. लेकिन अगर मेरी लॉजिकल मेमोरी का साइज बड़ा हो जाएगा, प्रोसेस बहुत लार्ज हो जाएगा, देन एक पेज टेबल से काम नहीं चलेगा. देन हमें बहुत सारे पेज टेबल्स बनाने पड़ेंगे और उन पेज टेबल को मैं यहाँ पर एज पेजेस स्टोर करा रहा हूँ और मुझे एक और आउटर पेज टेबल लेना पड़ रहा है जो कि इंडेक्स करेगा इन पेज टेबल्स को. सो दिस इज 2 लेवल बिकॉज हमारे पास 2 अलग अलग पेज टेबल्स हो गए, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक हमारा मिडल पे है. सो दिस इज 2 लेवल पेज टेबल स्कीम. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल अगेन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है? लॉजिकल एड्रेस जो हमारा क्या है वो 32 बिट का है. दैट मीन्स आई विल बी हैविंग 2 raised to power 32. एंड नाउ इंस्टेड ऑफ 4K यहाँ पर देखो पेज साइज कितना है? 1K. तो यानी कि मेरे पास 1K पेज साइज है. सो दैट मीन्स इट विल बी 2 raised to power 10. तो अगर जैसे ही मेरा पेज साइज 2 raised to power 10 है यानी कि 1K का है तो दैट मीन्स अगर मैं लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड करता हूँ P and D में तो जो मेरे पास D होगा यानी कि पेज ऑफसेट है वो 10 बिट्स लेगी. एंड टोटल 32 बिट्स हैं तो उन 32 बिट्स में से आप देख सकते हो यहाँ पर जो 10 बिट्स हैं वो D ने ले ली. एंड पेज नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 22 बिट्स. तो बाकी की जो 2 raised to power 32 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 10 होगा दैट विल बी 2 raised to power 22. दैट मीन्स जो फर्स्ट 22 बिट्स हैं वो मेरा पेज नंबर रिप्रेजेंट करेंगी और जो लास्ट की 10 बिट्स हैं वो पेज ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी. दिस इज द सिनेरियो. लेकिन 2 लेवल पेजिंग में हमने क्या करा है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमने 2 अलग अलग पेज टेबल बनाए हैं. एक हमारा पेज टेबल है जो पेजेस ऑफ पेज टेबल है और सेकंड जो है आउटर पेज टेबल वो इंडेक्स कर रहा है. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2 raised to power 22 को भी डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो वी आर हैविंग. सो जस्ट गिव मी 1 minute. This is how 2 raised to power 2 will be divided. So 2 raised to power 22 को भी हम डिवाइड करेंगे 10 की ऑफसेट में and remaining 12 bits will be used for the
outer page table. So this is how the overall indexing will be there. So this is just an example to understand how exactly the things would work. And this particular scheme is known as forward mapped page table. And if we talk about the address translation scheme, so you can see here the logical address is divided into P and D, and now further P will be divided into two parts, P1 and P2. So this will be according to this particular scenario. Now we have two different page table instead of one page table. So this is how we have to work with the scheme. एंड यू कैन सी हमारे पास एक पेज टेबल आउटर स्ट्रक्चर के लिए, देन हमारे पास एक पेजेस ऑफ पेज टेबल के लिए पेज टेबल, एंड दिस इज फॉर ऑफसेट. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि हमारा जो अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाए, 32 बिट की जगह अगर अब 64 बिट का हो जाएगा, देन नाउ देयर विल बी मोर कॉम्प्लेक्सिटीज. तो उस केस में हम 2 लेवल पेजिंग को भी implement नहीं कर पाएंगे. Now if I talk about 64-bit logical address space, so it will be 2 raised to power 64, and now page size is 4 KB. So 4 KB, as you know, 2 raised to power 2 into 2 raised to power 10, so it will be 2 raised to power 12. So that means आउट ऑफ 64 बिट जो मेरी 12 बिट्स हैं वो पेज ऑफसेट के लिए यूज होंगी, जो यहाँ पे यूज हो रही हैं. और नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इट विल बी 2 रेज टू पावर 52. सो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 52 बिट्स विल बी यूज्ड फॉर पेज नंबर. एंड इफ वी आर यूजिंग 2 लेवल पेजिंग, सो ये 52 भी डिवाइड हो जाएगी 42 प्लस 10 में. सो दैट मीन्स अगर मेरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस 64 बिट का हो जाता है तो 2 लेवल पेजिंग भी वहां पर काम नहीं करेगी, तब हम 3 लेवल पेजिंग पर जाएंगे. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिनेरियो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, इफ माय लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ग्रेटर देन 32 bit, then we use another scheme that is known as hashed page table. So hashed page tables I'm not going to discuss in much detail, so you just have to remember if our logical address space is greater than 32 bit, then जो हमारा previous hierarchical page table structure है वो use नहीं होता. उस केस में हम hashed page tables को use करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा. Logical address is divided into page number and page offset, एंड जो भी यहाँ पेज नंबर जनरेट होता है उसको हम यहाँ पर वर्चुअल पेज नंबर बोलेंगे, बिकॉज एक्चुअल में हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, फ्रेम नंबर में. तो जो भी यहाँ पे वर्चुअल पेज नंबर जनरेट होगा उस पर एक हम हैश फंक्शन लगाएंगे, उस हैश फंक्शन को हैश टेबल में पुट करेंगे. और इस हैश टेबल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो हमेशा लिंक लिस्ट की फॉर्म में होती हैं. और लिंक लिस्ट की 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर. फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा कंटेन करेगा वर्चुअल पेज नंबर. सेकेंड पार्ट जो हमारा कंटेन करेगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर जो कि फिजिकल मेमोरी में होगा. और जो थर्ड पार्ट है वो पॉइंटर कंटेन करेगा नेक्स्ट लिस्ट नेक्स्ट नोड का. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. सो द वर्चुअल पेज नंबर इज हैश्ड इनटू द पेज टेबल and each element contains virtual page number and value of the mapped page frame, and third element of this linked list is a pointer to the next element. So by hashing we used to search. hash करने के बाद जिस भी वैल्यू को वो मैच करेगा, फर्स्ट लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट हमारा एरिया है अगर उसको मैच करेगा तो हम उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे. अगर मैच नहीं करेगा देन वी विल just apply this technique again and again. So this is what hashed page table concept is. And last structure page table is inverted page table. So this is the last technique of using different page table structure. So here you can see instead of, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं हर प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनता है. तो जितने भी प्रोसेस है, अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक टाइम पर इकट्ठे रैमर हैं, तो जितने भी उनके पेज टेबल बनेंगे वो सभी पेज टेबल हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, मेनली वो सभी पेज टेबल हमारे रैम में स्टोर होते हैं. सो एक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसेस एक टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो सभी के लिए मुझे पेज टेबल को जनरेट करना और फिर उन पेज टेबल्स को वापस रैम में स्टोर कराना. सो इतनी मेमोरी हमारे पास नहीं होती. तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट है इन्वर्टेड पेज टेबल का. जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे प्रोसेसेस के लिए एक ही पेज टेबल बनाएंगे. तो यहाँ पर हमने देखो लॉजिकल एड्रेस के साथ एक प्रोसेस आईडी भी अटैच कर दी. तो यहाँ पर जो भी मेरा पेज टेबल बनेगा उसका जो एक कॉलम होगा वो पेज
प्रोसेस आईडी बताएगा। तो यानी कि अगर हो सकता है कि मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, 1 2 3 4, तो जो सबसे पहले इंडेक्स है वो यही बताएगा कि हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस का ये पेज नंबर है और उसका ये पेज ऑफसेट है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बेसिकली हमें हर प्रोसेस के लिए अलग से पेज टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, एक कॉमन पेज टेबल बनेगा जिसी के अंदर हम सारे के सारे प्रोसेसेस के अलग अलग पेजेस को, तो ऐसा हो सकता है, देखो पेज प्रोसेस 1 के अंदर भी 4 पेजेस हों और प्रोसेस 2 के अंदर भी 4 पेजेस हों, 0 से 3, 0 से 3, लेकिन जो हमारा प्रोसेस आईडी है वो हमें डिफरेंशिएट करके बताएगा कि हम कौन से प्रोसेस के पेज की बात कर रहे हैं। तो मेन थिंग इज दैट कि हम यहाँ पर अलग अलग पेज टेबल ना बनाकर हर एक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअली हम एक कॉमन पेज टेबल बनाते हैं, उस पेज टेबल के अंदर ही हम सारे प्रोसेसेस के पेजेस की एंट्री को स्टोर करा देते हैं, so that will comparatively take less time as compared to the previous scenario. So this is what about inverted page table. So you can just go through this content also. So rather than each process having a page table and keeping track of all possible logical pages, here we just try to track all the physical pages. So we have only one page table here, and entry consists of the virtual addresses of the page stored in their real memory location with information about the process. तो हर process की हम information रखेंगे कि ये पेज कौन से process का है, and basically ये करने से क्या होगा, it decreases the memory needed to store the each page table. So this is the concept of inverted page table. Now moving on to the important topic, that is segmentation. So I hope यहाँ तक सबको clear होगा. So segmentation is another memory management scheme, just like paging. तो paging and segmentation हमारी दोनों ही क्या है, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है। एंड अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो जो पेजिंग था हमारा वो किससे रिलेट होता था, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग के कंसेप्ट से, और जो हमारा सेगमेंटेशन है वो कुछ हद तक किस तरह का है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का। तो आपने पेजिंग में देखा होगा हमने प्रोसेस को भी फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड किया और मेन मेमोरी को भी फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड किया, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ fixed size partitioning concept. And here segmentation, it is quite similar to variable size partitioning. So you can see it is a memory management scheme that supports the user's view of memory. So इसकी interesting बात क्या है segmentation की, इसमें हम अपने प्रोसेस को या अपने प्रोग्राम को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर हम सेगमेंट्स बनाते हैं और जो सेगमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल साइज के हो सकते हैं। तो हम सेगमेंट्स बनाने का पर्पस क्या है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर सी के प्रोग्राम का लेंगे तो भाई सी के प्रोग्राम के अंदर आप देखोगे एक मेन फंक्शन है और कुछ अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं अलग अलग टास्क के लिए, एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो भी हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन है, सपोज स्क्वायर रूट का फंक्शन है या फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो जितनी इंस्ट्रक्शंस उसके कोड में होंगी उतने का हम एक सेगमेंट बना देंगे और उस सेगमेंट को फिर हम मेन मेमोरी के अंदर पुट करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इन द पेजिंग वी यूज टू डिवाइड आवर प्रोसेस इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। अब उस फिक्स्ड साइज ब्लॉक के अंदर जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी दैट डजंट मैटर, लेकिन सेगमेंटेशन में वी ऑलवेज यूज टू मेक वेरिएबल साइज सेगमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक्चुअली सेगमेंट किस चीज का है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजर्स व्यू ऑफ अ प्रोग्राम। सो my program may contain a main program, a symbol table, a stack, और suppose a square root function जो square root calculate करेगा। So इनकी length different हो सकती है, number of instructions कम ज्यादा हो सकती हैं। So the segments will be of variable size, and you can see if we have 4 different segments, 1 2 3 4, and they will be stored in our main memory, physical memory, non-contiguously. So आप देख सकते हो फ्रेम सेगमेंट नंबर 1 के बाद सेगमेंट नंबर 4 है, देन हमारे पास कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, फिर सेगमेंट नंबर 2 है, फिर सेगमेंट नंबर 3 है। सो दैट मींस they also stored as according to non-contiguous allocation, but instead of fixed size pages, now they are variable size segment. This is the major difference. So just before explaining this, let me discuss the scenario. So you can see CPU always generate logical address. तो यहाँ पर logical address हमारा generate divide होगा 2 parts में।
फर्स्ट विल बी सेगमेंट नंबर एंड सेकंड विल बी ऑफसेट। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है पेजिंग वाला, यहाँ पर हम पेजिंग की जगह सेगमेंट को यूज कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की, तो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ पेज टेबल हियर वी यूज सेगमेंट टेबल। तो सेगमेंट टेबल का काम क्या है? द लॉजिकल एड्रेस विच विल बी जनरेटेड बाय सीपीयू will be converted into physical address here by segment table। segment table के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहले आप बाहर देख सकते हो इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या है भाई? ये सेगमेंट नंबर बता रहा है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे मेरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइड है, सेगमेंट 0 से सेगमेंट 4 तक। तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ सेगमेंट टेबल। नाउ वी हैव टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनसाइड this segment table। one is known as base and second is known as limit। तो भाई base क्या बताता है? base tells about the base address of that particular segment inside the physical memory। तो मैं यहाँ segment 0 की बात करूं तो जो segment 0 का base है वो क्या है? 1400 है। तो आप देख सकते हो फिजिकल मेमोरी में जो सेगमेंट 0 है उसका जो बेस एड्रेस है वो 1400 है। लिमिट क्या बताएगा? लिमिट ऑलवेज टेल्स अबाउट द ऑफसेट और यू कैन से लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। तो 1400 से 2400 तक, तो इसकी लिमिट कितनी हो गई? 1000। so this is what segment table tells us, and side by side it helps in translating the logical address into physical address। Similarly you can see for segment number 1 base address is 6300। सबसे लास्ट में बैठा है हमारा फिजिकल मेमोरी में segment 1 and the limit is 400। that means 6300 से 6700 तक हमारा segment 1 होगा। this is what this segment table tells us। and if I talk about this diagram, so this is the hard disk for segmentation। so you can see CPU generates logical address which is divided into two parts here, segment number and ऑफसेट। सो सेगमेंट नंबर हमेशा हम कहाँ पे भेजेंगे? सेगमेंट टेबल में। वहां से हमें इंडेक्स से पता चल जाएगा उस सेगमेंट का बेस, और बेस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एट दिस लोकेशन एंड इट विल बी एडेड टू लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हमने वैल्यू है वो ये सॉरी उससे लेस होनी चाहिए। अगर लेस होएगी तो डेफिनेटली हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर लेस नहीं होगी देन देयर इज सम इशू। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर सेगमेंट 3 की बात करता हूँ। तो अगर सेगमेंट 3 की बात करें तो सेगमेंट 3 का जो बेस एड्रेस है वो 3200 है। सो सेगमेंट 3 का जो बेस एड्रेस है वो 3200 है, और जो उसकी लिमिट है वो 1100 है। दैट मीन्स 3200 से 4300 तक जो मेरा सेगमेंट 3 है दैट विल बी देयर। तो अगर मैं यहाँ सेगमेंट 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो भी सेगमेंट नंबर जनरेट होगा उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने पेजिंग में सीखा था। तो भाई उसके बेस की वैल्यू क्या है? यहाँ पर सेगमेंट 3 के जो बेस की वैल्यू है वो 3200 है। सो 3200 यहाँ से हमें मिलेगी, दैट विल बी पुट हेयर। नाउ लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी लिमिट ऑफ सेगमेंट 3 इज 1100। तो अगर हम यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू जाएगी अगर वो 1100 या उससे लेस है देन इट इज ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखो गलती से यहाँ पे 1200 लिमिट की वैल्यू दे दूं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 3200 उसका बेस एड्रेस है, उसमें अगर हम लिमिट को ऐड करें सो इट विल बिकम 3200 एंड 1200 इट विल बिकम 4400। जबकि जो मेरा सेगमेंट 3 है वो 4300 तक ही है। दैट मीन्स अब हम इस सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, इस सेगमेंट से कहीं और एक्सटेंड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ इशू विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो हमेशा जो हम ऑफसेट की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमेशा हमारी लिमिट से लेस होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर सेगमेंट 3 की जो लिमिट है वो 1100 है, और अगर मैं यहाँ पे सपोज 900 देता हूँ देन देयर इजंट एनी इशू। तो हम क्या कह रहे हैं? इस केस में हम सेगमेंट 3 की बात कर रहे हैं जिसका बेस एड्रेस 3200 है, लिमिट 900 लेस है 1100 से, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर केस में हम 3200 से 4100 तक का जो भी सेगमेंट 3 है वो वाली इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके बाद की हम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर जो हमारा ऑफसेट यहाँ पर वैल्यू जनरेट करेगा वो इस लिमिट से ग्रेटर हो जाएगी तो दैट मीन्स हम उस सेगमेंट से बाहर जाकर किसी और सेगमेंट की, या फिर अगर मेन मेमोरी एम्प्टी है
तो उस एम्प्टी सेगमेंट की बात कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ the actually segmentation happens. So this is what it says. So just let me finish the segmentation. So the logical address here is divided into two parts: segment number and the offset. And segment table is the memory management unit here, which used to translate the logical address into physical address. And here you can see the segmentation table contains base and limit. So base क्या contain करेगा? The starting physical address where the segment resides in the main memory, and limit specifies the length of the segment. And just like page table, here also we used to have two different pointers. One is STBR, वहाँ पे हमारे पास क्या थे? Page table base register and page table length register. और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे? Segment table base register and segment table length register. So they used to point the segment table and they used to indicate the number of segments used by the program. So this is all what I have explained. And into the segmentation segment table, that is valid invalid bit. तो भाई अगर हमारे पास base address plus limit accurate आ रही है, in that particular case we will be having valid bit. But अगर हम किसी ऐसे segment का number दे रहे हैं जो exist ही नहीं करता, if we talk about this example, now we are having only 5 segments which are numbered from 0 to 4. तो अगर मैं segment number 5 देता हूँ जो है ही नहीं, या segment number 6 देता हूँ, so in that particular case invalid bit will be set. And this is how the overall segmentation procedure works. So this is all about segmentation, and I hope the concept is very much clear to you. Almost ये पेजिंग जैसा ही है, तो अगर आपने पेजिंग को अच्छे से समझ लिया तो सेगमेंटेशन भी आपको क्लियर हो जाएगा. एंड हेयर इंस्टेड ऑफ पेज टेबल वी हैव सेगमेंट टेबल. सेगमेंट टेबल के अंदर बेस एड्रेस है और लिमिट है. लिमिट मींस लेंथ ऑफ द सेगमेंट. मेजर डिफरेंस जो आपको समझना है पेजिंग और सेगमेंटेशन में, पेजिंग में वी यूज टू हैव फिक्स्ड साइज पेजेस व्हिच आर there, and in the case of segmentation we used to have variable size segments. तो जब भी हमें उन्हें रिप्रेजेंट करना है मेन मेमोरी के अंदर, तो हमेशा हमें सेगमेंट का बेस एड्रेस प्लस उसकी लिमिट, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इस सेगमेंट की एक्चुअल लेंथ कितनी है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो जब भी हमें किसी भी सेगमेंट को एक्सेस करना होगा, सो सीपीयू विल जनरेट लॉजिकल एड्रेस. वो हमारा डिवाइड होगा सेगमेंट नंबर में प्लस सेगमेंट ऑफसेट में. सेगमेंट नंबर को हम पुट करेंगे सेगमेंट टेबल में, वहां से हमें पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट का बेस एड्रेस इन द फिजिकल मेमोरी एज वेल एज द लिमिट. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी वुड बी एबल टू access that particular segment. And in the end, you can see there are some examples. These are nothing, these are just the case studies. So you can just read it yourself for your knowledge also. Otherwise, you can just leave it also. You will not going to have any such question from this portion. So basically, we have finished the paging as well as segmentation concept. And this is an example of how paging and segmentation occurs in this processor Intel Pentium. So this is all about for today's lecture. So if anyone having any doubt, please ask. सर एक बार सेगमेंटेशन हार्डवेयर वापस बता दो. सेगमेंटेशन हार्डवेयर, ये देखो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस को जनरेट किया. यहाँ लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जस्ट लाइक पेजिंग. पेजिंग में क्या होता था? पेज नंबर और पेज ऑफसेट में. तो यहाँ पर सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट में. ठीक है. उसके बाद क्या करते थे हम पेजिंग में? उस पेज नंबर को हम पेज टेबल में डालते थे. पेज टेबल हमें क्या बताता था कि कौन सा फ्रेम है. तो यहाँ पर भी हमने जो सेगमेंट नंबर है उस सेगमेंट नंबर को कहाँ पे पुट किया? सेगमेंट टेबल में. तो यहाँ पर मेरे पास, अगर उसमें इसी एग्जांपल की बात लूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 5 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट 0 से सेगमेंट 4. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें एक सेगमेंट यहाँ मिल जाएगा. और उस सेगमेंट के हेल्प नंबर से मुझे इस सेगमेंट टेबल की हेल्प से उस सेगमेंट का बेस एड्रेस मिल जाएगा फिजिकल मेमोरी का, और लिमिट को हम हमेशा चेक करेंगे जो यहाँ पर ऑफसेट जनरेट होगी. तो आप देख सकते हो लिमिट को हम यहाँ पर एक चेक के लिए यहाँ भेज रहे हैं, बिकॉज जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जो भी सेगमेंट ऑफसेट होगी उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा लिमिट की वैल्यू से लेस होनी चाहिए. अगर लेस नहीं है तो हम उस सेगमेंट से बाहर जा रहे हैं और किसी रीजन की भी बात कर रहे हैं. तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर सेगमेंट नंबर 3 का एग्जांपल दिया था.
बेस एड्रेस 3200 है लेकिन लिमिट 1100 है। तो अगर मैं सेगमेंट 3 की बात करता हूं तो जब भी सेगमेंट 3 के लिए यहाँ पर डी की जो भी वैल्यू होगी, जब भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पेजिंग में सीखा था, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे, सिर्फ एक सिनेरियो को समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो सेगमेंट 3 के केस में जो भी लिमिट की वैल्यू, ऑफसेट की वैल्यू होगी वो 1100 से कम होनी चाहिए। अगर 1100 से कम है देन इट इज ओके, तो ये बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगी, यानी कि 3200 प्लस 1100, यानी कि 3200 से 4300 तक हम सेगमेंट 3 को एक्सेस कर सकते हैं। वो सेगमेंट 3 का ही रीजन है मेन मेमोरी में। और अगर मैंने वैल्यू उसकी लिमिट से ग्रेटर दे दी, यानी कि अगर यहाँ 1100 है मैंने 1200 दे दी, तो यानी कि 3200 प्लस 1200 ये हमारा 4400 पहुंच जाएगा। दैट मीन्स 4400 हमारा जो है वो कुछ सेगमेंट 2 का भी पोर्शन आ जाएगा। तो हम सिर्फ सेगमेंट 3 की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टाइम पर एक ही सेगमेंट को एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली। तो जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर कंप्लीट एक या तो मॉड्यूल है या फंक्शन है या मेन प्रोग्राम है या सब रूटीन है, तो हम एक टाइम पर एक सेगमेंट को ही एक्सेस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्डवेयर। अब इसमें कुछ नहीं समझ आया इस डायग्राम में, सो यू कैन आस्क मी। सर वो सेगमेंट ऑफसेट और लिमिट का कंपैरिजन होगा तो फिर वो आगे बेस प्लस लिमिट होगा क्या सर आगे फिर जाके? हाँ देखो, बेस प्लस लिमिट तो हमेशा ही होगा। मैं सेगमेंट 3 की बात करूं तो सेगमेंट 3 का बेस एड्रेस क्या है, 3200 है, और जो उसकी लिमिट है वो 1100 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 3200 प्लस 1100, यानी कि 3200 से लेके 4300 तक है जो मेरा सेगमेंट 3 की जो एड्रेस स्पेस है वो सेगमेंट 3 ने ऑक्यूपाई की हुई है। सिमिलरली अगर मैं सेगमेंट 4 की बात करता हूँ तो सेगमेंट 4 का बेस एड्रेस 4700 है और उसकी लिमिट 1000 है। तो यानी कि 4700 प्लस लिमिट 5700 तक जो मेरा है एड्रेस स्पेस, उस पे कौन है, सेगमेंट 4 है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। अगर सब कुछ सही है, देखो यहाँ पर सेगमेंट 3 की ही बात करें तो बेस वैल्यू 3200 मिलेगी, वो किस में ऐड हो जाएगी, लिमिट में। तो लिमिट मेरी 1100 थी, तो 3200 प्लस 1100 यानी कि 3200 से 4300 तक जो मेरा सेगमेंट 3 है वो बैठा हुआ है। तो वहां से लेके वहां तक की इंस्ट्रक्शंस को मुझे एग्जीक्यूट करना है सीपीयू को, अगर हमें सेगमेंट 3 को रन करना है। क्लियर है? ओके सर, ओके। हाँ, वैल्यू लेस हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि सेगमेंट 3 मैं पूरा नहीं एग्जीक्यूट करूँ, हाफ करूँ, दैट इज ओके। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू, अगर जो ऑफसेट है वो जनरेट कर देगी 800, उसमें कोई इशू नहीं है। 3200 प्लस 800, तो यानी कि 3200 से 4000 एड्रेस तक जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट करो। अभी हम नहीं चाहते कि सेगमेंट 3 पूरा एग्जीक्यूट करें, लेकिन लिमिट से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऑफसेट की ज्यादा आ रही है तो मतलब हम उस सेगमेंट से ही बाहर कहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उस सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके थ्रू हम एक टाइम पर एक ही सेगमेंट की बात करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, so this is all about for today's class. So just let me take attendance let me stop presentation also. आयुष, किसने रिकॉर्ड